1 year Bible reading plan। मैथ्यू 14th चैप्टर 13 वर्स से लेकर 36 वर्स तक और जेनेसिस 49 चैप्टर 50 चैप्टर। एक साल का बाइबल रीडिंग प्लान। मत्ती रचित सुसमाचार 14 अध्याय 13 वचन से 36 वचन तक। उत्पत्ति 49 अध्याय और 50 अध्याय। हम इंग्लिश में किंग्स जेम्स वर्शन में से पढ़ेंगे और हिंदी में BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। मैथ्यू 14th चैप्टर 13 वर्स से हम पढ़ेंगे। When Jesus heard of it, he departed thence by ship into a desert place apart. And when the people had heard thereof, they followed him on foot out of the cities. And Jesus went forth and saw a great multitude, and was moved with compassion toward them, and he healed their sick. And when it was evening, his disciples came to him, saying, This is a desert place, and the time is now past. Send the multitude away, that they may go into the villages and buy themselves victuals. But Jesus said unto them, They need not depart, give ye them to eat. And they say unto him, We have here but 5 loaves and 2 fishes. He said, Bring them hither to me. And he commanded the multitude to sit down on the grass, and took the 5 loaves and the 2 fishes, and looking up to heaven, he blessed and brake, and gave the loaves to his disciples, and the disciples to the multitude. And they did all eat and were filled, and they took up of the fragments that remained 12 baskets full. And they that had eaten were about 5,000 men, beside women and children. And straightway Jesus constrained his disciples to get into a ship, and to go before him unto the other side, while he sent the multitudes away. And when he had sent the multitudes away, he went up into a mountain apart to pray. And when the evening was come, he was there alone. But the ship was now in the midst of the sea, tossed with waves, for the wind was contrary. And in the 4th watch of the night Jesus went unto them, walking on the sea. And when the disciples saw him walking on the sea, they were troubled, saying, It is a spirit. And they cried out for fear. But straightway Jesus spake unto them, saying, Be of good cheer, it is I, be not afraid. And Peter answered him and said, Lord, if it be thou, bid me come unto thee on the water. And he said, Come. And Peter was come down out of the ship. He walked on the water to go to Jesus. But when he saw the wind boisterous, he was afraid, and beginning to sink, he cried, saying, Lord, save me. And immediately Jesus stretched forth his hand and caught him, and said unto him, O thou of little faith, wherefore didst thou doubt? And when they were come into the ship, the wind ceased. Then they that were in the ship came and worshipped him, saying, Of a truth thou art the Son of God. And when they were
gone over, they came into the land of Gennesaret. And when the men of that place had knowledge of him, they sent out into all that country round about, and brought unto him all that were diseased, and besought him that they might only touch the hem of his garment, and as many as touched were made perfectly whole. मत्ती रचित सुसमाचार 14 अध्याय 13 वचन से 36 वचन, यानी पूरा उसके आगे का पूरा अध्याय पढ़ेंगे। 5,000 पुरुषों को खिलाना। जब यीशु ने यह सुना तो वह नाव पर चढ़कर वहाँ से किसी सुनसान जगह को एकांत में चला गया। लोग यह सुनकर नगर नगर से पैदल ही उसके पीछे हो लिए। उसने निकलकर एक बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया और उनके बीमारों को चंगा किया। जब सांझ हुई तो उसके चेलों ने उसके पास आकर कहा, यह सुनसान जगह है और देर हो रही है, लोगों को विदा किया जाए कि वे बस्तियों में जाकर अपने लिए भोजन मोल ले। पर यीशु ने उनसे कहा, उनका जाना आवश्यक नहीं, तुम ही इन्हें खाने को दो। उन्होंने उससे कहा, यहाँ हमारे पास 5 रोटी और 2 मछलियों को छोड़ और कुछ नहीं है। उसने कहा, उनको यहाँ मेरे पास ले आओ। तब उसने लोगों को घास पर बैठने को कहा और उन 5 रोटियों और 2 मछलियों को लिया और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और रोटियां तोड़कर चेलों को दी। और चेलों ने लोगों को जब सब खाकर तृप्त हो गए तो चेलों ने बचे हुए टुकड़ों से भरी हुई 12 टोकरियां उठाई और खाने वाले स्त्रियों और बालकों को छोड़कर 5,000 पुरुषों के लगभग थे। यीशु का पानी पर चलना। तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले पार चले जाएं, जब तक वह लोगों को विदा करे। वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया और सांझ को वह वहाँ अकेला था। उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा सामने की थी। और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे, यह भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूँ, डरो मत। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। उसने कहा, आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा, पर हवा को देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु, मुझे बचा। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? जब वे नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई। इस पर उन्होंने जो नाव पर थे उसे दंडवत करके कहा, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। गन्नेसरत में रोगियों को चंगा करना। वे पार उतरकर गन्नेसरत में पहुँचे। 35 वचन से आगे। वहाँ के लोगों ने उसे पहचान लिया और आसपास के सारे देश में समाचार भेजा और सब बीमारों को उसके पास लाए और उससे विनती करने लगे कि वह उन्हें अपने वस्त्र के आंचल ही को छूने दे, और जितनों ने उसे छुआ वे चंगे हो गए। उत्पत्ति, Genesis 49 chapter. Jacob calleth his sons together. He pronounceth curses on Reuben.
and on Simeon and Levi, so blessing on Judah, etc. He charges them concerning his burial, his death. फर्स्ट वर्स से पढ़ेंगे. And Jacob called unto his sons and said, Gather yourselves together, that I may tell you that which shall befall you in the last days. Gather yourselves together and hear, ye sons of Jacob, and hearken unto Israel your father. Reuben, thou art my firstborn, my might and the beginning of my strength, the excellency of dignity and the excellency of power, unstable as water. Thou shalt not excel, because thou wentest up to thy father's bed, then defilest thou it. He went up to my couch. Simeon and Levi are brethren, instruments of cruelty are in their habitations. O my soul, come not thou into their secret, unto their assembly. Mine honor be not thou united, for in their anger they slew a man, and in their self will they digged down a wall. Cursed be their anger, for it was fierce, and their wrath, for it was cruel. I will divide them in Jacob, and scatter them in Israel. Judah, thou art he whom thy brethren shall praise. Thy hand shall be in the neck of thine enemies. Thy father's children shall bow down before thee. Judah is a lion's whelp. From the prey, my son, thou art gone up. He stooped down. He couched as a lion, and as an old lion. Who shall rouse him up? The scepter shall not depart from Judah, nor a lawgiver from between his feet, until Shiloh come, and unto him shall the gathering of the people be. Binding his foal unto the wine, and his ass colt unto the choice wine, he washed his garments in wine, and his clothes in the blood of grapes. His eyes shall be red with wine, and his teeth white with milk. Zebulun shall dwell at the haven of the sea, and he shall be for an haven of ships, and his border shall be unto Zidon. Issachar is a strong ass couching down between the two burdens, and he saw that rest was good, and the land that it was pleasant, and bowed his shoulder to bear, and become a servant unto tribute. Dan shall judge his people as one of the tribes of Israel. Dan shall be a serpent by the way, an adder in the path that biteth the horse heels, so that his rider shall fall backward. I have waited for thy salvation, O Lord. God, a troop shall overcome him, but he shall overcome at the last. Out of Asher his bread shall be fat, and he shall yield royal dainties. Naphtali is a hind, let loose he giveth goodly words. Joseph is a fruitful bough, even a fruitful bough by a vale, whose branches run over the wall. The archers have sorely grieved him, and shot at him, and hated him. And his bow abode in strength, and the arms of his hands were made strong by the hands of the mighty God of Jacob. From thence is the shepherd, the stone of Israel, even by the God of thy father, who shall help thee, and by the Almighty, who shall bless thee with blessings of heaven above, blessings of the deep that lieth under, blessings of the breasts and of the womb. The blessings of thy father have prevailed above the blessings of my progenitors unto the utmost bound of the everlasting hills.
They shall be on the head of Joseph, and on the crown of the head of him that was separate from his brethren. Benjamin shall ravin as a wolf. In the morning he shall devour the prey, and at night he shall divide the spoil. All these are the 12 tribes of Israel, and this is it that their father spake unto them and blessed them. Every one according to his blessing he blessed them. And he charged them and said unto them, I am to be gathered unto my people. Bury me with my fathers in the cave that is in the field of Ephron the Hittite, in the cave that is in the field of Machpelah, which is before Mamre, in the land of Canaan, which Abraham bought with the field of Ephron the Hittite for a possession of a burying place. There they buried Abraham and Sarah his wife. There they buried Isaac and Rebekah his wife, and there buried Leah the purchase of the field and of the cave that is therein was from the children of Heth. And when Jacob had made an end of commanding his sons, he gathered up his feet into the bed and yielded up the ghost and was gathered unto his people. Chapter 50. The mourning for Jacob, his funeral. Joseph prophesied to his brethren their return to Canaan, his age and death. First verse say, and Joseph fell upon his father's face and wept upon him and kissed him. And Joseph commanded his servants, the physicians, to embalm his father, and the physicians embalmed Israel, and 40 days were fulfilled for him. For so are fulfilled the days of those which are embalmed. And the Egyptians mourned for him 60 days. And when the days of his mourning were past, Joseph spake unto the house of Pharaoh, saying, If now I have found grace in your eyes, speak, I pray you, in the ears of Pharaoh, saying, My father made me swear, saying, Lo, I die in my grave, which I have digged for me in the land of Canaan. There shalt thou bury me. Now therefore let me go up, I pray thee, and bury my father, and I will come again. And Pharaoh said, Go up and bury thy father, according as he made thee swear. And Joseph went up to bury his father, and with him up all the servants of Pharaoh, the elders of his house, and all the elders of the land of Egypt, and all the house of Joseph, and his brethren, and his father's house, only their little ones, and their flocks, and their herds, they left in the land of Goshen. And there went up with him both chariots and horsemen, and it was a very great company. And they came to the threshing floor of Atad, which is beyond Jordan, and there they mourned with a great and very sore lamentation. And he made a mourning for his father 7 days. And when the inhabitants of the land, the Canaanites, saw the mourning in the floor of Atad, they said, This is a grievous mourning to the Egyptians. Wherefore the name of it was called Abel Mizraim.
which is beyond Jordan. And his sons did unto him according as he commanded them, for his sons carried him into the land of Canaan, and buried him in the cave of the field of Machpelah, which Abraham bought with the field for a possession of a burying place of Ephron the Hittite before Mamre. And Joseph returned into Egypt, he and his brethren, and all that went up with him to bury his father, after he had buried his father. And when Joseph's brethren saw that their father was dead, they said, Joseph will peradventure hate us, and will certainly requite us all the evil which we did unto him. And they sent a messenger unto Joseph, saying, Thy father did command before he died, saying, So shall ye say unto Joseph, Forgive, I pray thee now, the trespass of thy brethren and their sin, for they did unto thee evil. And now we pray thee, forgive the trespass of the servants of the God of thy father. And Joseph wept when they spake unto him, and his brethren also went and fell down before his face. And they said, Behold, we be thy servants. And Joseph said unto them, Fear not, for am I in the place of God? But as for you, ye thought evil against me, but God meant it unto good, to bring to pass as it is this day, to save much people alive. Now therefore fear ye not, I will nourish you and your little ones. And he comforted them, and spake kindly unto them. And Joseph dwelt in Egypt, he and his father's house. And Joseph lived 110 years. And Joseph saw Ephraim's children of the third generation, the children also of Machir, the son of Manasseh, were brought up upon Joseph's knees. And Joseph said unto his brethren, I die, and God will surely visit you, and bring you out of this land unto the land which he sware to Abraham, to Isaac, and to Jacob. And Joseph took an oath of the children of Israel, saying, God will surely visit you, and ye shall carry up my bones from hence. So Joseph died, being 110 years old, and they embalmed him, and he was put in a coffin in Egypt. उत्पत्ति 49 अध्याय। याकूब की भविष्यवाणी। पहले वचन से पढ़ेंगे। फिर याकूब ने अपने पुत्रों को यह कहकर बुलाया, इकट्ठे हो जाओ, मैं तुमको बताऊंगा कि अंत के दिनों में तुम पर क्या क्या बीतेगा। हे याकूब के पुत्रों, इकट्ठे होकर सुनो, अपने पिता इस्राएल की ओर कान लगाओ। हे रूबेन, तू मेरा जेठा, मेरा बल और मेरे पौरुष का पहला फल है। प्रतिष्ठा का उत्तम भाग और शक्ति का भी उत्तम भाग तू ही है। तू जो जल के समान उबलने वाला है, इसलिए दूसरों से श्रेष्ठ न ठहरेगा, क्योंकि तू अपने पिता की खाट पर चढ़ा, तब तूने उसको अशुद्ध किया। वह मेरे बिछौने पर चढ़ गया। शिमोन और लेवी तो भाई भाई है, उनकी तलवारें उपद्रव के हथियार है। हे मेरे जीव, उनके मर्म में न पड़। हे मेरी महिमा, उनकी सभा में मत मिल, क्योंकि उन्होंने कोप से मनुष्यों को घात किया और अपनी ही इच्छा पर चलकर बैलों को पंगु बनाया।
धिक्कार उनके कोप को जो प्रचंड था और उनके रोष को जो निर्दय था। मैं उन्हें याकूब में अलग अलग और इज़राइल में तितर बितर कर दूंगा। हे यहूदा, तेरे भाई तेरा धन्यवाद करेंगे, तेरा हाथ तेरे शत्रुओं की गर्दन पर पड़ेगा। तेरे पिता के पुत्र तुझे दंडवत करेंगे। यहूदा सिंह का बच्चा है। हे मेरे पुत्र, तू अहेर करके गुफा में गया है। वह सिंह अथवा सिंहनी के समान दब कर बैठ गया। फिर कौन उसको छेड़ेगा? जब तक शीलो न आए तब तक न तो यहूदा से राजदंड छूटेगा, न उसके वंश से व्यवस्था देने वाला अलग होगा, और राज्य राज्य के लोग उसके अधीन हो जाएंगे। वह अपने जवान गदहे को दाखलता में और अपनी गदही के बच्चे को उत्तम जाति की दाखलता में बांधा करेगा। उसने अपने वस्त्र दाख मधु में और अपना पहरावा दाखों के रस में धोया है। उसकी आंखें दाख मधु से चमकीली और उसके दांत दूध से श्वेत होंगे। जबूलून समुद्र के तीर पर निवास करेगा। वह जहाज़ों के लिए बंदरगाह का काम देगा और उसका परला भाग सीदोन के निकट पहुँचेगा। इसक्कार एक बलवंत गदहा है जो पशुओं के बाड़ों के बीच में दबका रहता है। उसने एक विश्राम स्थान देखकर कि अच्छा है और एक देश की मनोहर है, अपने कंधे का बोझ उठाने के लिए झुकाया और बेगारी में दास का सा काम करने लगा। दान इस्राएल का एक गोत्र होकर अपने जाति भाइयों का न्याय करेगा। दान मार्ग में का एक सांप और रास्ते में का एक नाग होगा जो घोड़े की नली को डसता है, जिससे उसका सवार पछाड़ खाकर गिर पड़ता है। हे यहोवा, मैं तुझे से उद्धार पाने की बाट जोहता आया हूँ। गाद पर एक दल चढ़ाई तो करेगा, पर वह उसी दल के पिछले भाग पर छापा मारेगा। आशेर से जो अन्न उत्पन्न होगा वह उत्तम होगा और वह राजा के योग्य स्वादिष्ट भोजन दिया करेगा। नप्ताली एक छूटी हुई हरिणी है, वह सुंदर बातें बोलता है। यूसुफ फलवंत लता की एक शाखा है, वह सोते के पास लगी हुई फलवंत लता की एक शाखा है। उसकी डालियां भीत पर से चढ़कर जाती है। धनुर्धारियों ने उसको खेदित किया, पर उस पर तीर मारे और उस पर तीर मारे और उसके पीछे पड़े हैं। पर उसका धनुष दृढ़ रहा और उसकी बाह और हाथ याकूब के उसी शक्तिमान परमेश्वर के हाथों के द्वारा फुर्तीले हुए, जिसके पास से वह चरवाहा आएगा, जो इस्राएल की चट्टान भी ठहरेगा। यह तेरे पिता के उस ईश्वर का काम है जो तेरी सहायता करेगा, उस सर्वशक्तिमान का जो तुझे ऊपर से आकाश में की आशीषें और नीचे से गहरे जल में की आशीषें और स्तनों और गर्भ की आशीषें देगा। तेरे पिता के आशीर्वाद मेरे पितरों के आशीर्वादों से अधिक बढ़ गए हैं और सनातन पहाड़ियों की मनचाही वस्तुओं के समान बने रहेंगे। वे यूसुफ के सिर पर जो अपने भाइयों से अलग किया गया था, उसी के सिर के मुकुट पर फूले फलेंगे। बिन्यामीन फाड़ने वाला भेड़िया है, सवेरे तो वह अहेर भक्षण करेगा और सांझ को लूट बांट लेगा। याकूब की मृत्यु और गाड़ा जाना। इस्राएल के 12 गोत्रों यही है और उनके पिता ने जिस जिस वचन से उनको आशीर्वाद दिया वे ये ही है। एक एक को उसके योग्य आशीर्वाद के अनुसार उसने आशीर्वाद दिए। तब उसने यह कहकर उनको आज्ञा दी, मैं अपने लोगों के साथ मिलने पर हूँ, इसलिए मुझे हित्ती एप्रोन की भूमि वाली गुफा में मेरे बाप दादों के साथ मिट्टी देना, अर्थात उसी गुफा में जो कनान देश में ममरे के सामने वाली मकपेला की भूमि में है। उस भूमि को अब्राहम ने हित्ती अप्रैम के हाथ से
इसीलिए मोल लिया था कि वह कब्रिस्तान के लिए उसकी निज भूमि हो। वहाँ अब्राहम और उसकी पत्नी सारा को मिट्टी दी गई थी, और वही इसहाक और उसकी पत्नी रिबका को भी मिट्टी दी गई, और वही मैंने लिया को भी मिट्टी दी। वह भूमि और उसमें की गुफा हित्तियों के हाथ से मोल ली गई है। याकूब जब अपने पुत्रों को यह आज्ञा दे चुका, तब अपने पाँव खाट पर समेट प्राण छोड़े और अपने लोगों में जा मिला। 50 अध्याय पहले वचन से। तब यूसुफ अपने पिता के मुँह पर गिर कर रोया और उसे चूमा, और यूसुफ ने वैद्यों को जो उसके सेवक थे आज्ञा दी कि उसके पिता के शव में सुगंध द्रव्य भरे। तब वैद्यों ने इस्राएल के शव में सुगंध द्रव्य भर दिए और उसके 40 दिन पूरे हुए, क्योंकि जिनके शव में सुगंध द्रव्य भरे जाते हैं उनको इतने ही दिन पूरे लगते हैं। और मिस्री लोग उसके लिए 70 दिन तक विलाप करते रहे। जब उसके विलाप के दिन बीत गए, तब यूसुफ फ़िरौन के घराने के लोगों से कहने लगा, यदि तुम्हारे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर हो तो मेरी यह विनती फ़िरौन को सुनाओ। मेरे पिता ने यह कहकर, देख मैं मरने पर हूँ, मुझे यह शपथ खिलाई जो कब्र मैंने अपने लिए कनान देश में खुदवाई है, उसी में तू मुझे मिट्टी देगा। इसलिए अब मुझे वहाँ जाकर अपने पिता को मिट्टी देने की आज्ञा दे, तत्पश्चात मैं लौट आऊँगा। तब फ़िरौन ने कहा, जाकर अपने पिता की खिलाई हुई शपथ के अनुसार उसको मिट्टी दे। इसलिए यूसुफ अपने पिता को मिट्टी देने के लिए चला, और फ़िरौन के सब कर्मचारी अर्थात उसके भवन के पुरनिये और मिस्र देश के सब पुरनिये उसके संग चले, और यूसुफ के घर के सब लोग और उसके भाई और उसके पिता के घर के सब लोग भी संग गए। पर वे अपने बाल बच्चों और भेड़ बकरियों और गाय बैलों को गोशेन देश में छोड़ गए और उसके संग रथ और सवार गए। इस प्रकार भीड़ बहुत भारी हो गई। जब वे अताद के खलिहान तक, जो यरदन नदी के पार है, पहुँचे, तब वहाँ अत्यंत भारी विलाप किया, और यूसुफ ने अपने पिता के लिए 7 दिन का विलाप कराया। 11 वचन से आगे। आताद के खलिहान में के विलाप को देखकर उस देश के निवासी कनानियों ने कहा, यह तो मिस्रियों का कोई भारी विलाप होगा। इसी कारण उस स्थान का नाम अबेल मिस्रैम पड़ा, और वह यरदन के पार है। इस्राएल के पुत्रों ने ठीक वही काम किया जिसकी उसने उनको आज्ञा दी थी, अर्थात उन्होंने उसको कनान देश में ले जाकर मकपेला की उस भूमि वाले गुफा में जो ममरे के सामने है मिट्टी दी, जिसको अब्राहम ने हित्ती एप्रोन के हाथ से इसलिए मोल लिया था कि वह कब्रिस्तान के लिए उसकी निज भूमि हो। यूसुफ का अपने भाइयों को आश्वासन देना। अपने पिता को मिट्टी देकर यूसुफ अपने भाइयों और उन सब समेत जो उसके पिता को मिट्टी देने के लिए उसके संग गए थे मिस्र लौट आया। जब यूसुफ के भाइयों ने देखा कि हमारा पिता मर गया है, तब कहने लगे, कदाचित यूसुफ अब हमारे पीछे पड़े और जितनी बुराई हमने उससे की थी सबका पूरा पलटा हमसे ले। इसलिए उन्होंने यूसुफ के पास यह कहला भेजा, तेरे पिता ने मरने से पहले हमें यह आज्ञा दी थी, तुम लोग यूसुफ से इस प्रकार कहना कि हम विनती करते हैं कि तू अपने भाइयों के अपराध और पाप को क्षमा कर। हमने तुझसे बुराई की थी, पर अब अपने पिता के परमेश्वर के दासों का अपराध क्षमा कर।
उनकी ये बातें सुनकर यूसुफ रो पड़ा और उसके भाई आप भी जाकर उसके सामने गिर पड़े और कहा, देख, हम तेरे दास हैं। यूसुफ ने उनसे कहा, मत डरो, क्या मैं परमेश्वर की जगह पर हूँ? यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया, जिससे वह ऐसा करे जैसा आज के दिन प्रकट है कि बहुत से लोगों के प्राण बचे हैं। इसलिए अब मत डरो, मैं तुम्हारा और तुम्हारे बाल बच्चों का पालन पोषण करता रहूँगा। इस प्रकार उसने उनको समझा बुझाकर शांति दी। यूसुफ की मृत्यु। यूसुफ अपने पिता के घराने समेत मिस्र में रहता रहा और यूसुफ 110 वर्ष जीवित रहा और यूसुफ एप्रैम के परपोतों तक को देखने पाया और मनश्शे के पोते जो मकीर के पुत्र थे वे उत्पन्न हुए और यूसुफ ने उन्हें गोद में लिया। यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, मैं तो मरने पर हूँ, परंतु परमेश्वर निश्चय तुम्हारी सुधि लेगा और तुम्हें इस देश से निकालकर उस देश में पहुँचा देगा जिसके देने की उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब से शपथ खाई थी। फिर यूसुफ ने इस्राएलियों से यह कहकर कि परमेश्वर निश्चय तुम्हारी सुधि लेगा, उनको इस विषय की शपथ खिलाई, हम तेरी हड्डियों को यहाँ से उस देश में ले जाएंगे। इस प्रकार यूसुफ 110 वर्ष का होकर मर गया और उसके शव में सुगंध द्रव्य भरे गए और वह शव मिस्र में एक संदूक में रखा गया। टू ईयर्स बाइबल रीडिंग प्लान, 2 साल का बाइबल रीडिंग प्लान। मैथ्यू 8 चैप्टर 12 to 22 वर्स, जेनेसिस 21 चैप्टर। 2 साल के बाइबल रीडिंग प्लान में मत्ती रचित सुसमाचार 8 अध्याय 12 से 22 वचन और उत्पत्ति 21 अध्याय। 2 साल का बाइबल रीडिंग प्लान, 2 ईयर बाइबल रीडिंग प्लान हम अपने पर्सनल व्यक्तिगत समय में पढ़कर अभ्यास करना है। हम अपने अभ्यास के लिए ये साल 2 साल के बाइबल रीडिंग प्लान को उपयोग कर रहे हैं। यही वचनों को हम 1 साल के बाइबल रीडिंग प्लान में पढ़ते हुए आए हैं। इसके लिए एक बार हमने मिलकर पढ़ा है और अभी हम वही दोहराए गए रहते हैं अध्याय 2 साल के बाइबल रीडिंग प्लान में, तो हम उसको लेंगे और अपने व्यक्तिगत समय में उसको पढ़कर अभ्यास करेंगे और नोट्स निकालेंगे और उसके प्रचार सुनेंगे और परमेश्वर का जो कहना है उन अध्यायों के अंदर से हमारे लिए वो सब इकट्ठा करेंगे, ताकि हम अपने अंदरूनी मनुष्य में से परमेश्वर का जो काम हमारे लिए रखा होगा उसके अनुसार हम बन सके। प्रभु यीशु हम सबके साथ बना रहे। आमीन, आमीन, आमीन।